right, so move forward. We have got another amazing speaker, and we call this segment as Whispers of Wonder. So we are here to wonder, and to listen to the whispers of wonder, I'm inviting Miss Afshan Tehseen. She is the CEO of Human Capital Pakistan, former chairperson of the National Commission on the Rights of Children. And please join me in welcoming Miss Afshan Tehseen. बजा दें तालियां. Backbenchers, middle order. Thank you very much. Afshan, over to you. Gee, hello everybody. Am I loud and clear? I want each and every person under this roof to be very active and listening to what I'm going to speak, and I've been given just 30 minutes. So here we'll be going back with lots of good skills, tips, and lots of things which are going to change our lives. So please start the presentation. The topic which I have been given is the invisible workload, and prior to that, we heard wonderful insights from the panelists, and I think my session is going to reinforce and complement all the discussion. So this session which I am going to speak upon, I am going to dedicate it to all the wonderful women around the globe, particularly the Pakistani women who are always busy in performing jobs, tasks, roles, responsibilities, and trying to fulfill those in the best possible manner through multitasking. So please clap for yourself. So, my introduction has always been shared. So I'll just quickly move forward because initially I was told that I'm going to speak for 40 minutes, but now it has been cut down to 30 minutes. So the key components we are going to discuss today is what is invisible workload, its various types, its negative impact on us, our personal experiences, some research findings, some coping strategies to address the invisible workload, and then some personal reflections to look inwards, whether we are affected by invisible workload, and then some pledge at the end by all of us. This is something, when I was preparing my session, I came across this quote, and I think it rightly pierced into my heart because it reflects our stories. It says, the biggest barrier for women is the thought that they cannot have it all. So do you agree with it or not? Rose, raise your hands if you agree with it. I cannot see many hands. So it means we are all women very empowered under this roof. Before I go further, I just like to relate a personal story, and that is a story of every woman. मैं इसको पढ़ देती हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टोरी भी सुना सकती हूँ. तो आप बताइए कि मैं इसको रीड करूँ या अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊँ? जी, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मुझे जानते भी हैं. मेरा ताल्लुक एक रूरल बैकग्राउंड से है, और I was the eldest daughter and I had got 4 brothers. और मैं भी उन लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने के ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया, सारे स्टीरियोटाइप्स को फाइट किया, और बहुत ही बैरियर्स के बावजूद पढ़ाई की, और फिर फाइनली एंडेड अप हियर in Pakistan, and I headed 3 organizations as CEO. तो मेरी कहानी भी कुछ इस तरह से, जब मेरे 4 भाई थे और मैं बहन थी, और हम इकट्ठे स्कूल जाते थे, लेकिन जब हम वापस आते थे तो मुझे घर में भी बहुत सारा काम करना पड़ता था. जबकि मेरे भाई आते थे, कहते थे खाना दो, खाने में भी कढ़ाई और गोश्त ही चाहिए, और उसके बाद या वो दोस्तों के पास चले जाते थे या फिर वो गेम्स, क्रिकेट, प्ले, घर से बाहर चले जाते थे. जबकि हमें शायद इंटरटेनमेंट का हम नाम ले तो इसको स्टिग्मा समझा जाता है और इसको अलाउ भी नहीं किया जाता, शायद इसको हमारी रिस्पेक्ट के साथ रिलेट किया जाता है. सो उसी वक्त से मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी कि क्यों दोनों में फ़र्क है, हालांकि दोनों ही इंसान हैं.
उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी, I ended up in Islamabad, started my career, and then soon after when I got married and then I had 2 daughters, तो ये सारा जो ज़माना था उसमें मुझे लगता है कि मैं एक स्टेप आगे चली गई. उसमें ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट जॉब्स पे थे, दोनों ही अदारों को भी हेड करते रहे. लेकिन मैं जब घर जाती थी, चाहे मैं यूनाइटेड नेशंस में सीनियर पोजीशन पे थी, एक बहुत बड़े हुकूमत के कमीशन की चेयरपर्सन थी, या बहुत बड़े एक 2000 से ज़्यादा मेंबर्स नेटवर्क की सीईओ थी, या अब मैं ह्यूमन कैपिटल की सीईओ हूँ, लेकिन हम दोनों जब घर वापस आते थे तो मेरा जो वर्किंग मीटर होता था ज़ीरो से दोबारा शुरू हो जाता था, जबकि मेरे हस्बैंड बैठे, टीवी देखा, अखबार पढ़ा, अपना रेस्ट किया, और मेरी जिम्मेदारियाँ ज़ीरो से शुरू हो जाती थी. और हम अक्सर वर्कशॉप्स में भी ये एक्सरसाइजेस कराते हैं कि हम 12 आवरली क्लॉक देते हैं मर्दों को भी और औरतों को भी. पर्टिकुलरली रूरल कम्युनिटीज़ में बड़ा मज़ा आता है जब पहले पूछते हैं भी तेरी बुढ़ी की कर दिए, जैसे कुछ नहीं कर दी, घर में होती है. तो उसके बाद जब हम उनको वो वर्किंग क्लॉक देते हैं तो पता चलता है कि जो बुढ़ी है, जो वाइफ है, चाहे वो वर्किंग है या एग्रीकल्चरल सेटिंग्स में काम कर रही है, शी गेट्स अप अर्ली बिफोर एवरीबडी इन द मॉर्निंग. She starts preparing for the breakfast for her children, for her husband. She starts managing all the tasks before going to office work if she is a working lady. और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो सबसे last person होती है to go to bed. And over weekends where husband is resting and taking care and other things and kids also, she is responsible to manage the rest of 5 days work during the weekends कि जब वो Monday को जाए तो वो सारा जो backlog है वो clear किया हुआ हो. तो ये सारी स्टोरी उसमें जब वो सामने जब चोर्स होते हैं तो फिर एक आईना नज़र आता है कि नहीं भाई वो तो पहले शुरू करती है और आखिरी होती है. तो फिर हम उनको ये कहते हैं कि जितने काम आपकी विमेन अगर वर्किंग भी नहीं है तो घर में करती है, अगर हर काम के अगेंस्ट अगर उसको पे किया जाए या वो चली जाए कुछ अरसे के लिए, अपने मैके चली जाए, कहीं पोस्टिंग पे चली जाए, तो फिर वो जो खिला पैदा होता है तो फिर आपको कदर आती होगी कि वाकई हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, खासकर विमेन हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही होती हैं जो कि नज़र नहीं आ रहा होता. चूँकि सोसाइटी में पैट्रियार्कल नॉर्म्स, स्टीरियोटाइप्स, चूँकि ये हो रहा है, देख देख के इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है. ये इसकी जो एगनी है, जो पेन है, जो बर्डन है, वो उसके अलावा कोई फील नहीं कर सकता जो कि इसका शिकार होता है. और चूँकि वो खातून अपने इन लॉज में होती है तो वो अपने घर में नहीं होती, तो उसके सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं. और एज अ वुमेन उसको सिर्फ अपने हस्बैंड या बच्चों का ख्याल ही नहीं करना होता, बल्कि अपने जो इन लॉज हैं, रिलेटिव्स हैं, और एक परफेक्ट पर्सोना के तौर पे उसको खुद को प्रेजेंट करना होता है. और ये मत भूलें कि एक खातून साइमल्टेनियसली ऑफिस में भी अपने मर्दों के बराबर कॉम्पीट कर रही होती है और वो घर में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रही होती है. सो इनविजिबल वर्कलोड से मुराद हमारी है द मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेबर इन्वॉल्व इन रिमेंबरिंग. हमारी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेबर जो कि लगता है हमारा पूरा ये इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं उन तमाम कामों को जो कि नॉर्मली अनरिकग्नाइज्ड, अनसीन, अनएक्नॉलेज्ड एंड अंडर वैल्यू हो जाते हैं. एक बात बताइए आप सब यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स बैठी हैं, इनविजिबल वर्क का प्रेशर इतना होता है कि जब आप सुबह उठ के ऑफिस में जाते हैं तो आपका जो माइंड का क्लॉक है वो ऑफिस के डिलीवरेबल्स पे तो फोकस कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ घर के डिलीवरेबल्स पे भी फोकस कर रहा होता है. मेड ने बच्चों को खाना दिया होगा, बच्चों ने आके स्कूल से क्या किया होगा, आज सफाई वालों ने ठीक सफाई की होगी, वीकेंड्स पे गेस्ट आने हैं वो ग्रॉसरी करी होगी. तो वो जो कंटिन्यूस क्लॉक ऑफ अनसीन बर्डन प्लानिंग का आपके दिमागों में चल रहा होता है, तो ये बताइए कि उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, अच्छा या बुरा? जोर से लर्न टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, अच्छा या बुरा? ओके. इस दौरान आप अगर देखें तो जो अनविजिबल वर्कलोड होता है जिसमें कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी, बहुत सारी टाइप्स हैं,
जो कि हम अभी मैं पढ़ूंगी, लेकिन आपको आगे थोड़ी सी हम एक्सरसाइज देंगे कि जिसमें आपने इसको थोड़ा रिलेट करना है. इसमें सबसे बड़ा जो वर्कलोड होता है वो एक्सपेक्टेशंस का होता है. हमारे बच्चों ने को हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमारे घर वालों को हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमारे ऑफिस में हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमारे जैसे मैंने कहा इन लॉज, रिलेटिव्स, बहन भाई, सोसाइटी. तो ये जो एक एक्सपेक्टेशंस का लोड एक खातून लेके चलती है, ये वही बता सकती है कि उसको अंदर ही अंदर कितने महाजों पे लड़ना पड़ता है. सेकंड, जैसे मैंने बात की, एक सोशल लोड भी हमारे पास है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट of relationships, personal relationships, social relationships and concerns, and addressing them to create a win-win situation for you as a successful woman. Domestic load, homework and family, word इसमें बात हो चुकी है, टाइम कम है. Emotional load, ये एक लोड ऐसा है जो कि शायद कैथारसिस और चैनलाइज करने के एवेन्यूज भी नहीं होते, जिसमें कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें, हम अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर सकें. अगर कहीं पे हम समझते हैं हम ओवरवर्क्ड हैं, फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, घर और वर्क लाइफ में जो ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं कर रहे, स्टिल हमारे पास इतने एवेन्यूज, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि हम अपनी इमोशनल फीलिंग्स को बैलेंस कर सकें. Mental load relates to, remembering all the tasks and the plannings which always go, continuously at the back of your mind. And then you have official workload, constant performing. और ये सच है because as I mentioned, I had been the head of organizations and 4 organizations, government, United Nations, then development and then private. So in all these organizations, I know how it feels like performing when you're a woman, you're a wife, you're a mother, and at the same time, you're a professional competing with the male counterparts. So you have to be at par with them, assuming that you have no other responsibility. Just like males, अक्सर मैं TV programs में मैं जब जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मर्द औरतों की कोई बीवी नहीं होती, तो उनको काफ़ी काम बहुत ज़्यादा खुद ही करने पड़ते हैं. So this is one of the unfortunate aspects that women don't have any wife. Okay, ji. Have I given a checklist to all of you? किसी को हमने checklist दी है? The handouts distribute हुए? Okay, ji. कुछ examples हैं मैंने जो invisible road की यहाँ पे दिखाई हैं. Being the first one to start the day in the house, being the last one to go to bed, managing and maintaining the entire house, cooking, washing, cleaning, keeping track of kids' homework, attending husband-in-law's guests' office preparations, taking care of groceries, managing domestic health, managing family relations. I just need 2 speakers, very articulate one, who dare to be very convincing in their arguments, and I need 1 male and 1 female. We'll be giving them 1 minute to convince on the topic we are talking about. So kindly, a volunteer required, a strong female required, and a strong male required. एक उनका हाथ पहले खड़ा था, so एक खातून भी चाहिए हमें. आ जाएं, भाग के आएं. We have just 1 minute because 30 minutes हैं और अभी हमने काफी सारा काम करना है. Run. एक माइक और चाहिए जी. थोड़ा सा चूंकि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हमने कर ली है, थोड़ी माहौल भी बना दिया है, बेस भी बना दिया है, तो हम थोड़ा सा सैम्पलिंग साइज, थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करते हैं कि एक हमारे पास मेल है, एक फीमेल है, देखते हैं कि कौन प्रूफ करता है कि वो ज़्यादा काम करता है, इनविजिबल, ओवरबर्डन है. सो यहाँ पे कोई टाइम कीपर्स हैं क्योंकि हम इनको 40 seconds देंगे. You are the timekeeper, so you want to be the first one. You can start with. Okay. So what are we going to? आपने ये जितनी आज अभी डिबेट हुई है, तो आपने ख़वातीन को एडवोकेट बनते हुए उनकी वकालत करनी है कि ख़वातीन मल्टीटास्किंग, इनविजिबल वर्कलोड, एक से ज़्यादा महाजों पे काम करती हैं. जी और बहुत ज़्यादा. ठीक है. और एक्नॉलेजमेंट के एस्पेक्ट को भी देखिए जी. Sure. Ready, 1, 2, 3, start. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शाजिया है and I've come from Askari Bank.
I started off with this banking career 21 years back. अपने करियर में मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे बैच फेलोज़ ने भी स्टार्ट किया, और जब हम घर से निकलते हैं तो ख़वातीन अपने घर का सुबह उनका टाइम अर्ली स्टार्ट होता है। बच्चों के साथ उन्होंने पहले उनको ड्रॉप करना है, नाश्ता देना है, घर में काम करना है, फिर ऑफिस जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कम से कम मेरे रीजन में मैंने किसी खातून को देखा हो कि वो घर से सुबह उठती है, नाश्ता करती है, उसको बना हुआ मिलता है, और ऑफिस जाती है, वापस आती है, सब कुछ बना हुआ मिलता है, फिर वो सो जाती है और टीवी देखती है, अखबार पढ़ती है। Whereas we have to run around all the time. I wish this time comes sometime. हाँ, अगर हमने ऐसा करना है तो हमें एक अच्छी मेड चाहिए, और फिर अच्छी मेड के पीछे भागना एक और ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो अगेन वी आर इन द सेम सर्कल। तो मैंने तो अपनी इन 21 years में यही देखा है कि ख़वातीन हैव बीन वर्किंग, एक हम लफ्ज़ बोलते हैं वॉकिंग अ माइल, एक्स्ट्रा माइल, तो वी आर वॉकिंग टू मेनी एक्स्ट्रा माइल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल्दो इसमें टाइम आप मेरा ख्याल है बहुत चाहिए, लेकिन स्टिल थैंक यू वेरी मच। के लिए 1 घंटा चाहिए मुझे। थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. My name is Bilal Kazmi and I am working as a HRBP for Easy Paisa. Holistically, if I talk about my opinion, so I genuinely believe that without women we cannot survive. But again, the topic है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो again, no, this is the reason I'm here, right? Okay, He that is I'm going to supporting. defend men. Yeah, but I'm defending men. So coming back from a family where I have 8 sisters, जो responsibilities लड़कों की होती हैं, source of earning तो होना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी there are very unsaid things जो कि मेरी जिम्मेदारी होती हैं। अगर मुझे कोई नहीं भी बताता तो एंड में अगर किसी सिचुएशन में आप आते हैं तो वो यही कहते हैं कि और कौन करेगा, अब्बू के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो इस तरह की अब उनकी शादियों की भी जिम्मेदारियाँ हमारी ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनके हस्बैंड की उनकी शादी होने के बाद भी अगर उनका चैलेंज होता है तो वो हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो अपार्ट फ्राम वर्क वी ऑल डू जो सब जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा कब कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाना है, किसकी जिम्मेदारी उठानी है, किसकी सिक्योरिटी का देखना है। सो वेर एवर यू फील सेफ इट्स बिकॉज ऑफ द गाइज। एंड अगर आप अनसेफ होते हैं तब भी हमारी वजह से होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा सेफ्टी के लिए भी गाइज का ही इस्तेमाल होता है। Time is up. Thank you very much. He's a smart guy. I was about to ask कि सिक्योरिटी किन से चाहिए होती है ख़वातीन को। ओके जी, जिन लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे ज़्यादा हैवी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स थे और यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने वुमेन की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सपोर्ट किया है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। और कुछ लोग जो कहते हैं यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, चले जी कालिया। यहाँ पे चूंकि मेजॉरिटी अथॉरिटी एंड एक नारी सब पे भारी लग रहा है, तो यहाँ जरा ज्यादा वोट्स थे। क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ यू। भी सारा औरतों का ही था ना जी, आ जाए। ये कभी-कभी ऐसे इवेंट्स नजर आते हैं, अदरवाइज इट्स द अदर वे अराउंड। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा गाइस, आप लोगों के पास कुछ बुकलेट हमने सर्कुलेट की है। I want you, each one of you, at the back of this session. इस सेशन को होने में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। प्लीज आई वांट एवरीबॉडी टू बी अटेंटिव। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी आंखें बेशक बंद कर लें और मुझे सुने, और उसके बाद आपके पास एक बुकलेट है, उसमें ये सेम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आपने उनको आंसर करना है, लेकिन उससे पहले सुने। अपनी आंखें भी बंद कर लें अगर मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। इसमें है कि व्हाट्स समथिंग यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट नो वन आस्क यू अबाउट, कि आपको खुद ही से याद रखना होता है इनविजिबल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड है, हाउ मैनी ऑफ यू हैव एवर फेल्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई, कि दिल का हाल किसको कहें। How many tasks do you perform in normal routine that no one notices? ऐसे कौन सारे काम हैं जो आप normal routine में करती हैं जो कि unnoticed, unacknowledged चले जाते हैं? Reflect on your official and domestic work-life routine. Also think of times where you feel like your brain was never at rest. Think of when you felt like you were buried under loads of work. Think of when you felt emotionally, mentally, and physically exhausted. Do you sometimes feel like you are failing no matter how you do? There are two ways of doing it. One way is I ask the response from anyone from the hall
कि पहले जो स्टेटमेंट है कि क्या आपको अनसीन काम याद करने पड़ते हैं, अगर कोई बताना चाहे, you want to pin down on your booklets. What do you want? Anybody from the audience want to speak? Do you have the checklist with you, booklet? तो आप दिल से ज़रा इसमें लिखिए और अपने जो जज्बात, अपनी feelings, pour them out and write them there. You are going to take them along as a memory of your self-reflection. I give you 2 minutes. Once you're done, we'll move further. और जो हमारे male counterparts यहाँ पे बैठे हुए हैं, today I will request them to put yourself in the female's shoes and think about them with an empathy approach. जल्दी से लिख लीजिए because today time is just 30 minutes and almost कितना time रह गया? Let me make your job more easy. Shayad it is going to take longer, so let me make it easier for you. Hello, everybody. Attention, please. I see lots of mini meetings at the back. Let's put it in the most easiest and quicker way since time is very short. This is an activity which is called what is in your backpack. If your life was a backpack, what invisible items are weighing you down? Keeping in view the checklist I just shared beforehand, and then just focus on your entire, life as a professional, working woman, as a mother, as a wife, or maybe a housewife perspective. Just list down few points. Those which are exhausting you or weighing you down. Please take 2 minutes and do it very honestly, because sometimes we are very confused in our minds and we don't know what's the problem with us. But if you put them down with clarity, you can get solutions as well. And that's what we are going to do ahead. I need facilitators to go around the tables and check if they are writing, because I need some instant feedback from the tables whether they are putting it on their booklets or not. Those who have done, please raise your hands. Can anybody would like to share? I need 2 to 3 responses from the audience. So raise your hand if you want to share some comments from this activity, what you have penned down and what has affected you. Anybody who wants to share or say something? जी, ये अगर एक माइक है तो वो पीछे चाहिए किसी को. जल्दी से भाग के आगे आ जाए, यहाँ आके माइक लेके सामने बोलिए. जल्दी से, क्विकली. और सिर्फ 30 सेकंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आपको क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जल्दी जल्दी, क्विकली. Assalamu alaikum. This is Tehseen Ishfaq from National Bank of Pakistan. I am serving as a member directing staff and Staff College Islamabad. I would like to share some barriers which oftenly faced by the females at workplace as well as at house. I would like to summarize it into 3 points. First of all, we at the end are not able at all
to maintain our own mental peace and work-life balance, just because of different biasness at workplace as well. And the things which are also mentioned earlier by my colleague over here from Askari Bank, these are very common things that everybody knows about that, but nobody actually practice to bring improvement at workplace. These are the things which are oftenly discussed at different or various platforms, but practically there is nothing to do a favor. Like there are so many organizations where... Brief, because your point has, been noted down. Thank you very much. I have been asked to just conclude it. Thank you very much. Clapping for her, please. It needs a bold soul to come and, reflect it in front of so many people. Please, इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा गौर करना है. It's not just exhausting, it's dangerous. When women carry more than they should silently, it leads to mental health issues, emotional well-being, decision fatigue, resentment and guilt, loss of identity, weak relationships, health issues, stagnant growth, chronic stress and burnout, and decreased opportunities, career progression, physical health. और इस सब में जो सबसे ज़्यादा contributing factors हैं वो हमारे social norms हैं, harmful social norms, gender stereotypes, power imbalances, जो कि इस और gender imparity and patriarchy जो कि इसको affect करते हैं. वैसे आजकल मार्केट में अच्छे दूल्हे और husbands आ रहे हैं. हमारे ज़माने में तो वो जैसे ही सास आती थी तो वो पीछे हो जाते थे, उनकी absence में फिर भी थोड़ी बहुत help हो जाया करती थी. What research tells us? Research बताती है कि जो American Sociological Review था 2019 का, उसमें ये बताया गया कि women in dual career households still do 65% more childcare and 30% more household work than their male partners, even when both work full time. थोड़ी सी हम quickly 1 minute में strategies पे बात कर लेंगे. सबसे ज़्यादा तो ये कि हर motivational coach, psychologist, psychosocial supporters ये बताते हैं कि treat yourself, value yourself, focus on your me time, अपने आप को respect करें. अगर आप खुद को अपने को respect नहीं करेंगे तो दूसरे कभी भी नहीं करेंगे. उसमें strategies ये हैं कि भले आप कितने ही busy क्यों ना हो, अपने दिन का 3 से 60 minutes जो हैं वो आपका me time होना चाहिए, जिसमें कोई order, कोई errands, कोई और काम नहीं होना चाहिए. आप लिखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं, प्रेयर है, स्किन केयर है, सोशलाइजिंग है. दिस 30 to 60 minutes should be only your time. उसके बाद हमारे वर्क प्लेस पे एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशंस की ज़रूरत है, इंक्लूसिव लीडरशिप की ज़रूरत है, इमोशनल चेक-इन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और फिर सबसे बड़ी बात ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, फ्लेक्सिबल आवर्स, डे केयर्स, मेंटल हेल्थ डे केयर्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैंने अपने करियर में 3 बड़े UN और 2 इंटरनेशनल अदारों में डे केयर्स बनवाए और उसमें भी एक दफ़ा झगड़ा हो गया कि मर्दों ने कहा कि भाई ये तो औरतें काम नहीं करेंगी, तो मैंने हेड से कहा कि मुझे सिर्फ 1 वीक दिया जाए, मैं प्रूव करूँगी कि डे केयर ज़रूरी हैं. और जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि मैंने पूरा हफ्ता रिसर्च किया है, ये हमारे कोलीग्स हर थोड़ी देर के बाद 2-4 का ग्रुप बना के स्मोकिंग करने जाते हैं और फिर 4 मिनट और लगा के गप्पे भी लगाते हैं, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हर 3 घंटे के बाद एक फीड चाहिए होती है, उसके बाद वो सो जाते हैं. तो जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो HR रेसिस्ट कर रहा था उनसे कहा तुम अपना रूम खाली करोगे और यहाँ पे डे केयर बनेगा. ये सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट प्लीज़ अपनी बुकलेट देखिए, उसमें ज़रूर आपने टिक करना है ताकि अपने इश्यूज़ को आप एनालाइज कर सकें. उसके बाद आपने एक ऐसा टास्क जो कि आप इनविजिबल वर्कलोड के तौर पे लेके चलते हैं उसको आइडेंटिफाई करें. फाइंड समबडी विद whom you can share. और आपने खुद से ये कमिटमेंट करनी है कि मैंने इस इनविजिबल टास्क को एड्रेस या ले ऑफ कैसे करना है. Raise your hand that you will do it, please. Promise. ये pledge हमें चाहिए आप सब से
और इसके लिए please again with a very strong motivation, commitment and resolve, you will have to promise that you will lighten someone else's invisible load, maybe by next week or by next day or by next month. Say, I will do that. Raise your hands. कितने लोगों ने ये रिजॉल्व किया है? खासकर जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके हाथ मुझे नजर नहीं आए, जरा आटे में नमक के बराबर थे. सो आई वांट ऑल द हैंड्स हाई for all the, these commitments and pledge at the end of this session. Agreed? Thank you very much, Ji. Thank you.